वाहिगुरु गुण कीरत नित मोरी, तू ही रस तू ही जस, तू ही रूप तू ही रंग, आस ओट प्रभ तोरी। तू ही मान तू ही धान, तू ही पत तू ही प्राण, गुर टूटी लै जोरी। तू ही ग्रह तू ही बन, तू ही गाँव तू ही सुन, ऐ नानक नेर नेरी। गुण कीरत नित मोरी। वाहिगुरु पूरे गुर ते नाम पाया जाए, जोग जुगत सच रहै समाए। धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी की ये अमृतमयी सिद्ध गोष्ठ बाणी। आओ आज इसके 34वीं पौड़ी की विचार करिए। सतगुरु जी उपदेश करते हुए कह रहे हैं, पूरे गुर ते नाम पाया जाए। पूरे गुरु दे राही ही नाम की प्राप्ति होती है। दूसरे जो पूरे नहीं हैं उन्होंने तो नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। सिर्फ जो सतगुरु है जिहड़ा उस सत दे नाल जुड़िया हुआ है, उसे तो ही नाम की प्राप्ति हो सकती है। सतगुरु जिहड़ा सत दे नाल जुड़िया है, बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। सतगुर विच आप रखियो, कर प्रगट आख सुनाया। सतगुरु तो बिना किसी नूं भी उस वाहिगुरु की उस वाहिगुरु के नाम की प्राप्ति नहीं हुई। बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुरु कौन? सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम। सतपुरख, सत जो सदा रहने वाला अटल है, अविनाशी है। पुरख जो सारियां दे विच समाया हुआ है, सारे पासे उसकी जिसकी जोत है, वो सतपुरख। सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम। सतगुरु वही है जिसने उस सत नूं उस पुरख नूं जान लिया है, जिहड़ा उस सतपुरख दे नाल जुड़िया हुआ है, जिहड़ा सतपुरख का ही रूप है, वही सतगुरु है। सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम। तिसकै संग सिख उधरै। सतगुरु के संग दे विच आके फिर सिख जो है विकारां तो उधर जाता है, विकारां तो बच जाता है, हौमे तो बच जाता है। सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम। वो सतगुरु है जिहड़ा कि उस सत ते पुरख दे नाल जुड़िया हुआ है। तिसकै संग सिख उधरै, नानक
ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਤ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਸਚ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ, ਜੋਗ ਜੁੜਨਾ, ਜੁਗਤ ਤਰੀਕਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋਗੀ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਿਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਸੱਚ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਦਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਜੋਗ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਸਦਾ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। 12 ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਪਰਮਾਏ, ਸੰਨਿਆਸੀ 6 4। ਜੋਗੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ 12 ਫਿਰਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋਗੀ ਇੱਕ ਆਈ ਪੰਥ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 6 4 6 ਜਮਾ 4 10 ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ 10 ਫਿਰਕੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 12 ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਪਰਮਾਏ, ਸੰਨਿਆਸੀ 6 4। ਜੋਗੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ 12 ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ 10 ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ ਜੋ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਹੀ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵੈ, ਸੋ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਤੋੜ ਲੈਣੀ, ਹਉਮੈ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਰਨਾ। ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ, ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕਰਨੀ,
इस तरह मर के फिर जीवे, फिर गुरु के शब्द के नाल जुड़ के जी पवे। इन्हों खत्म करके गुर कै शब्द जो मर जीवै सो पाए, मोख द्वार वही फिर मुक्ति का दरवाजा बनता है, उसनों ही मुक्ति मिलती है, उसनों ही फिर जींदियां जी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जो गुरु के शब्द के राही इन्हां विकारां नूं खत्म करके, हौमे नूं खत्म करके उस वाहिगुरु के नाल जुड़ता है, वो मर के फिर जी पैंदा है, वही फिर मुक्ति का द्वार लभ लैंदा है। इसे करके भगत कबीर जी अपने शब्द विच इस तरह सानू उपदेश करते हैं। कबीर मरता मरता जग मूआ, मर भी न जाने कोए। सारा ही कहते हैं असी मर रहे हैं, पर मरना जानता ही कोई कोई है। मरना की है? इन्हां विकारां नूं मारना, हौमे नूं मारना, ये मरना है। इस तरह मर के फिर जिहड़ा कोई जीव जिउंदा है वो फिर मोख द्वार नूं प्राप्ति कर लैंदा है। बिन शब्द सब दूजै लागै, देखो हृदय विचार। सारे अपने अंदर विचार करके देख लो कि बिन शब्द जिहड़े शब्द के नाल नहीं जुड़े, गुरु के बख्शे हुए शब्द के नाल नहीं जुड़े, वो सदा फिर दूजे भाव दे विच ही लगे रहंदे हैं। वो परमात्मा के नाल नहीं जुड़ते, उन्होंने अंदर दूसरा भाव ही सदा पिया रहिंदा है। वो वाहिगुरु के गुण नहीं गाउंदे, उस वाहिगुरु के नाल नहीं जुड़ते, जिहड़े कि शब्द के नाल नहीं जुड़ते, वो फिर दूजे भाव दे विच रहिंदे हैं। नानक वड्डे से वड भागी, जिनी सच रखिया उर धार। सतगुरु जी उपदेश करते हुए कह रहे हैं, हे नानक वो वड्डे बंदे हैं, वो धनवंत हैं, वो वडभागी हैं, जिनी सच रखिया उर धार। और फिरदा अपने हिरदे जिन्होंने सच नूं टिका लिया है। सच वो वाहिगुरु जो सदा रहन वाला है, जो इस सारे जगत को पैदा करने वाला है, जो इस जगत को एक खिंड दे विच पैदा करके खिंड दे विच ही खत्म करने वाला है, वो सच। तो सतगुरु कह रहे हैं कि जेड़े सच नूं अपने हिरदे दे विच धारदे हन, सच नूं अपने हिरदे दे विच वसाई रखते हैं, वही वड्डे हन ते वही वडभागी, वड्डे भागां वाले हैं। इसे करके सतगुरु जी सुखनी साहब दे विच सानू उपदेश करते हुए कहते हैं, ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त, जिस हृदय भगवंत। जिन्हां दे हिरदे विच भगवंत है, वो वाहिगुरु समा गया है, वही धनवंत हैं, धन वाले हैं। कुलवंत कुल वाले हैं, पतवंतो इज्जत वाले हैं, जीवन मुक्तो जींदिया होया ही मुक्त हैं। जिन्हां दे अंदर वो वाहिगुरु वस जाता है, जिन्हां दे अंदर उस वाहिगुरु की जोत वस जाती है, जिन्हां दे अंदर गुरु का शब्द वस जाता है। नानक वड्डे से वड भागी, जिनी सच रखिया उर धार। जिन्होंने सच नूं अपने हिरदे दे विच समा लिया है, वही वड्डे हैं, वही वड्डे भागां वाले हैं। सतगुरु कृपा करन असीं भी गुरु के शब्द के नाल जुड़ के उस सच दे विच समाइए, तां जो साडा भी जीवन जो है वो सफला हो सके। जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।